اور بورڈ میں آپ یہ یقین کر لیں زین، یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ اچھا، یہ آپ کا ایک مشہور ڈائیلاگ ہے، مشہور زمانہ کہ رولا کبھی بھی پہ سکتا، جو 2000 میں بک آئی تھی اور اب 2021 میں ہم وہی کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ تو بائی نیچر میرے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا سافٹ ویئر رکھا ہوا تھا۔ دیکھا نہ کوئی کوکن فرہاد کے بغیر، آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برق میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام انسنگ ہیروز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زین بن منور۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، جنوبی پنجاب کی ہر دل عزیز شخصیت، میری مناد جناب پروفیسر میاں محمد نواز صاحب ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کا سب سے پہلے آج جو ہم آپ سے انٹرویو کرنے آئے ہیں، آج آپ سے جو گفتگو کرنے آئے ہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے وہ پہلو جو آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کے فالوورز، آپ کے چاہنے والے اسٹوڈنٹس کے سے بالکل الگ ہے، ان کے بارے میں بات کریں کہ آپ نے جو اپنی ابتدائی تعلیم ہے وہ کہاں سے حاصل کی، کس اسٹرگل سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کر کے آج اس مقام تک آپ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو زین آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ بات یہ ہے کہ زندگی ایک جہد مسلسل کا نام ہے، اور دنیا میں آپ کسی بھی بندے کی ہسٹری جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے۔ لہٰذا زندگی بغیر محنت اور کوشش کے تو ہے ہی نہیں۔ میرا تعلق چونکہ بالکل ایک گاؤں، ایک دیہات سے ہے، میاں چنوں کے قریب، تو وہاں سے ہمارے گاؤں میں تو اس وقت ہائی اسکول تھا نہیں، تو میں نے مڈل جو ہے وہ اپنے گاؤں کے اسکول سے کیا، اور ویسے پھر اپنے کالج گورنمنٹ فریدیہ سائنس کالج 333 گاف بے فرید آباد، اچھا، ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیک سنگھ۔ اچھا، وہاں سے آپ کو شاید یہ بھی حیرانی ہوگی کہ یہ بالکل گاؤں کے اندر کالج بنایا ہوا ہے، اور یہ ڈاکٹر فرید بخش تھے اس زمانے کے، جنہوں نے اپنی کوشش، اپنی محنت سے گورنمنٹ سے ایک بھی پیسہ لیے بغیر یہ کالج بنایا، جہاں سے آپ نے ایف ایس سی، جہاں سے میں نے ایف ایس سی کی۔ بی ایس سی کے لیے میں گورنمنٹ کالج ساہیوال چلا گیا، ٹھیک، وہاں سے بہت اچھے نمبروں سے میں نے بی ایس سی کی، اور اس کے بعد مجھے اسکالرشپ پہ الحمدللہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ایم ایس سی کیمسٹری میں داخلہ مل گیا، ٹھیک ہے، تو وہاں سے میں نے پھر ایم ایس سی کی اور ایم فل بھی وہیں سے کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر میری لیکچرشپ ہو گئی 1989 میں، تو یوں میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ تقریباً آدھے ملک میں پھر کے جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ یہ آپ کا جو مضمون ہے کیمسٹری، یہ بڑا خشک مضمون ہے، تو یہ آپ کا جس وقت آپ اسٹوڈنٹ تھے تو آپ کا اس طرح رجحان کیسے گیا اور آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا یہاں؟ اصل میں کسی بھی مضمون کو خشک یا دلچسپ بنانے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس ٹیچر کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے جو آپ کو پڑھاتا ہے۔ ہم جب بی ایس سی میں گورنمنٹ کالج ساہیوال میں تھے تو وہاں آصف تنویر صاحب تھے، ہمارے ایک دو اور ٹیچر تھے کیمسٹری کے، بڑے ہمیں انہوں نے اس قدر اچھے طریقے سے کیمسٹری پڑھائی کہ ہمیں تمام سبجیکٹس میں سے مجھے خاص طور پہ کیمسٹری بہت زیادہ اچھی لگتی تھی، اور کیمسٹری میں ہمیشہ ٹاپر اسٹوڈنٹ میں وہاں رہا، تو اس لیے میرا پھر ایک شوق پیدا ہو گیا کہ میں نے بھی کیمسٹری کا ہی پروفیسر بننا ہے۔ اور زین آپ کو یہ مطلب جان کے حیرت بھی ہوگی کہ جب میں نے ایم ایس سی کی تو آپ جانتے ہیں 1989 میں جاب کرائسس بالکل نہیں تھا، الحمدللہ ہمیں اس وقت اور بھی جابز ملی، مجھے اٹامک انرجی کمیشن میں سائنٹیفک آفیسر کی جاب ملی، اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا تھا کہ مجھے تھرو پبلک سروس کمیشن پورے پنجاب کی ایک سنگل پوسٹ تھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینڈ اریگیشن، تو اس ایک سیٹ پہ میری اکیلے کی سلیکشن ہوئی 1993 میں، لیکن میں اپنی ول سے، اپنی خوشی سے ان جابز کو چھوڑ کے میں ٹیچنگ میں آیا، کیونکہ ٹیچنگ ہی مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا، یہ 18 سالہ ملتان سے رفاقت، بالکل 31 سالہ تعلیمی خدمات کا ایک بہت عرصہ ہے، 3 ڈیکیڈز، اچھا، لیکن مضمون کیمسٹری، خشک مضمون، مزاج اتنا نرم، یہ پرسنالٹی میں تضاد کیسا؟ یہ اصل میں نے یہ دیکھا کہ یہ مضمون بڑا خشک ہے، اب اگر ٹیچر اس کو سختی سے پڑھائے گا
और फिर आप जानते हैं कि बंदे के अंदर एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर भी होता है जो बाई नेचर होता है। तो बाई नेचर मेरे अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा सॉफ्टवेयर रखा हुआ था कि मैं थोड़ा सा मतलब मज़ा में और इस तरह की चीज़ों में मैं थोड़ा सा तेज़ था। तो ऊपर से मज़मून मेरा ऐसा था, तो मैंने दिल में ये सोचा कि भाई अगर इस तरह के मज़मून को मैं इसी तरह से पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो यार ये पढ़ेगा कौन, तो लोग तो इससे मुतनफ़र होते जाएंगे। इसलिए मैंने फिर बड़ा सॉफ्ट धीमे लहजे में और स्टूडेंट्स के साथ बड़े प्यार मोहब्बत से। केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट जिससे स्टूडेंट की जान जाती है, भागते हैं पढ़ने से, ख़ास तौर पे ए उम्र का वो हिस्सा होता है जहाँ इंसान काफ़ी चीज़ों में उसकी जो सोच होती है, उसकी जो अटेंशन होती है वो डिवाइड होती है। उस जगह पर आपकी क्लास में आपके लेक्चर्स के दौरान ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है वो जो स्टूडेंट्स ऐसे लपकते हैं जैसे कि भी यहाँ से कुछ खाने को भी मिलने वाला है, कोई ब्रोस्ट मिलेंगे, कुछ मिठाई मिलेगी? बात ये है कि मैं हमेशा मेरी कोशिश, देखें दो बातें हैं, आप अगर किसी सब्जेक्ट को बग़ैर लॉजिक के पढ़ाएंगे और स्टूडेंट से कहेंगे कि इसे याद करो, तो आप मुझे बताएं वो कहाँ तक उसको हिफ्ज़ कर लेगा। जब आप हर चीज़ की लॉजिकल रीजनिंग देंगे और बच्चे को ये फील होगा कि यार ये तो बड़ी दिलचस्प बातें हैं जो मतलब मुझे समझाई जा रही हैं, तो बच्चे की इंटरेस्ट बढ़ती हैं। मैंने कभी भी केमिस्ट्री में रट्टा नहीं लगवाया। अच्छा, ये आपका एक मशहूर डायलॉग है, मशहूर ज़माना के रोला कभी भी पै सकता है। बिल्कुल। ये क्या है जी, इसकी क्या कहानी है कि केमिस्ट्री विद रीज़न होती है। ठीक है। मसलन आप एक चीज़ को समझते हैं कि इसे यूं होना चाहिए, लेकिन वो वैसे नहीं हो रही, तो उस पे फिर मैं अक्सर स्टूडेंट्स को पंजाबी में कह देता था कि ये देखो यहाँ आके रौला पड़ गया, और रौला कभी भी पड़ सकता है। लिहाजा जहाँ कहीं प्रॉब्लम पैदा होता है तो मैं फिर स्टूडेंट को कहता हूँ कि ये देखो अब हमारी तवक्को थी कि यूँ होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं हो रहा, इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, और साइंस उस रीज़न को ढूंढने का नाम है कि ये ऐसा क्यों होता है। अच्छा, आपके 3 डेकेड्स की तालीमी खिदमात हैं और बड़े बड़े ओहदे आपको मिले हैं, जैसे वाइस प्रिंसिपल आप रह चुके हैं एमर्सन कॉलेज के, जो अभी मौजूदा एमर्सन यूनिवर्सिटी है। इससे पहले आप इसका एडिशनल चार्ज इसके प्रिंसिपल का भी आपके पास रहा है। चेयरमैन ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट तो आप अभी भी एमर्सन यूनिवर्सिटी में हैं, इससे पहले कॉलेज में भी थे। इसके साथ साथ आपको एक तुर्रा इम्तियाज़ है जो मुल्तान बोर्ड के आप चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी के अंदर कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? कि जब कभी भी मेरिट की बात आती है कि जी मेरिट पे बंदा यहाँ पे रखना है, तो मेरिट पे तो फिर साउथ पंजाब में मेरे अलावा कोई नहीं होता। नहीं, ये तो भाई कहते हैं कि भी ये जो सारी सीटें हैं तो सारी सियासी होती हैं। बस वो फिर ये भी आखिर मतलब ये भी देखें, अब मुल्क में सियासत है तो इस तरह के मामलात भी चलते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बड़े मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मुझे अगर चार्ज मिला प्रिंसिपल एमर्सन कॉलेज का तो ऑन मेरिट मिला, कोई सिफारिश नहीं थी, मैंने किसी को नहीं कहा। और बोर्ड में आप ये यकीन कर लें ज़ैन, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ कि मैं घर बैठा हुआ था तो मुझे मतलब घर बैठे हुए को कॉल करके ये कहा गया कि जी आप अपनी एक सीवी जो है वो हमें भिजवा दें, फ़लाँ बंदे को लाहौर जो है वो अपनी सीवी भिजवाएं, क्योंकि सीएम साहब ने कहा है कि जी जो सीनियर मोस्ट बंदा है केमिस्ट्री, जो सीनियर मोस्ट बंदा है साउथ पंजाब का, उसे आप जो है वो चेयरमैन का चार्ज दे दें। लिहाजा मैं इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे कभी किसी सियासी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे अपना मेरिट जो है वही मतलब मेरी कामयाबी है कि मैं बीइंग सीनियर मोस्ट जो है वो पोस्ट के लिए एलिजिबल होता। आपने कई हुकूमतें देखी। बिल्कुल सही है। कई अदवार गुजरे। बिल्कुल सही है। बहुत सी तालीमी पॉलिसियाँ आई। आप कौन सी पॉलिसी को बेहतर समझते हैं और मौजूदा हुकूमत की क्या पॉलिसी है एजुकेशन के हवाले से? बात यह है कि ये भी मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क की एक बैड लक आप कह लें कि भी किसी एक पॉलिसी को जारी नहीं रखा गया। मतलब सबसे पहले 1947 में ही एक पॉलिसी बनी, लेकिन उसको कंटिन्यू रखा गया, फिर 56 में बनी, 62 में बनी, 73 में, मतलब इस तरह पॉलिसीज़ तो बनती रहती हैं, लेकिन बाज़ नागुज़ीर वजूहात की वजह से, सियासी वजूहात से और प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि उसको कंटिन्यू नहीं रखा जाता। इस गवर्नमेंट में मुझे जो एक बात मतलब अच्छी नज़र आई है कि इन्होंने कम अज़ कम ये ज़रूर किया है इस गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने कि एक सिंगल नेशनल करिकुलम जो है SNC जो है वो बनाने की कोशिश की है, अगरचे वो अभी 5th तक इन्होंने बनाया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप जानते हैं तालीम या किसी भी मामले में असल चीज़ बुनियाद होती है। आप अगर एक बच्चे की बुनियाद में हुब्बुल वतनी भर देंगे तो वो बड़ा भी हो जाएगा तो उसके अंदर वो चीज़ रहेगी, और अगर आप एक बच्चे की बुनियाद में फ़िरका वारियत भर देंगे तो वो बड़ा भी हो जाएगा तो वही रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट वाकई डिटरमिन्ड है और इन्होंने जो SNC बनाया है और अगर उसके ऊपर अमल करवा लिया जाए कि वाकई मतलब हर इदारे हर जगह कोई बड़ा हो छोटा हो जो भी हो उसे वही करिकुलम पढ़ाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये इस गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी कामयाबी हो। अब बात यह है कि एक रूमर है, ये रूमर है या इस बात की तस्दीक करें या इस बात को इनराफ करें कि जो चीज़ें हमारे टीचर्स ने 30-30 साल पहले पढ़ी हैं आज भी इतनी जदीद वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। हमारा करिकुलम अभी तक मॉडर्नाइज नहीं हुआ है। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ और इत्तेफाक करता हूँ कि जिस तरह ज़माने में नॉलेज में और ख़ास तौर पे साइंस के नॉलेज में जिस तरह से चेंजेस आ रही हैं उस तरह से बदकिस्मती से हमारे करिकुलम में चेंजेस नहीं आ रही। मसलन आप देखें केमिस्ट्री हम वही पढ़ा रहे हैं जो 2000 में बुक आई थी और अब 2021 में हम वही केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस पर गवर्नमेंट को ना एक बाकायदा मैकेनिज़्म डिवेल्प कर देना चाहिए कि हर 5 साल के बाद बुक जो है वो रिवाइज़ होनी चाहिए और उसमें ना एक पूरा सिस्टम हो। ये नहीं भी गवर्नमेंट कहेगी और कमेटियां बनाएगी तो जो है वो करिकुलम को फिर मतलब इसी करिकुलम के अपडेट ना होने की वजह से, इस मैकेनिज्म के ना होने की वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते तो बहुत अच्छा है, मार्क्स बहुत अच्छे लेते हैं, मगर वो जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं और मॉडर्नाइज चीज़ें देखते हैं तो उनको लगता है कि ये तो कोई खलाई मखलूक से चीज़ें आई हैं। बिल्कुल, इसमें ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अनलकीली हमारा सिस्टम ऐसा है कि भी जो बुक में लिखा है अगर एन उसके मुताबिक लिखा है तो नंबर मिलेंगे, और अगर स्टूडेंट ने खुद लिख दिया तो उसको कहते हैं जी ये इसने पता नहीं क्या लिख दिया है। कभी इस निज़ाम से फेड अप हुए? बिल्कुल हुआ। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पेपर हर साल चेंज हो जाना चाहिए। अब आप देखें ये कैसी अजीब बात है कि जो पेपर का पैटर्न 25 साल वही पैटर्न चल रहा है, इतने शॉर्ट आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, MCQs आएंगे तो वो वही रट्टे वाले MCQ आएंगे। मतलब मैं समझता हूँ कि सिस्टम को कम अज़ कम इतना अपडेट होना चाहिए और टीचर्स की इस तरह से ट्रेनिंग की जाए कि वो बच्चों को ये रियलाइज़ करवाएं कि नॉलेज रट्टे का नाम नहीं है, नॉलेज सीखने का नाम है। एक आखिरी पैगाम स्टूडेंट्स के नाम। स्टूडेंट्स के नाम सिर्फ एक पैगाम है और वो है कि खुदा के लिए शॉर्टकट में ना रहा करें, बस ये मेहरबानी करें। नंबर 2, जब भी पढ़ें समझ के पढ़ें और ये सोच के ना पढ़ें कि मैंने नंबर लेने हैं, नहीं। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश होती है कि स्टूडेंट ये सोच के क्लास में आए, ये समझ के क्लास में आए कि मैं सीखने जा रहा हूँ, मैं समझने जा रहा हूँ। वो ये सोच के क्लास में ना आए कि मैं हाज़िरी लगवाने जा रहा हूँ या मैंने 2-4 सवाल याद कर लेने हैं और मैंने रट्टा लगा के नंबर लेने हैं। तो स्टूडेंट से मेरी सिर्फ एक ही मतलब आप उसे मेरी रिक्वेस्ट समझ लें या मेरी ख्वाहिश समझ लें या मेरी नसीहत समझ लें कि स्टूडेंट जो हैं वो रट्टे की बजाय समझ के पढ़ना शुरू। जी नाज़रीन, हमारे साथ मियाँ नवाज़ साहब मौजूद थे। बिल्कुल मियाँ नवाज़ साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब नहीं, मियाँ नवाज़ साहब केमिस्ट्री के प्रोफेसर जो कि चेयरमैन मुल्तान बोर्ड भी रह चुके हैं और साउथ पंजाब के मोस्ट सीनियर तरीन प्रोफेसर कहलाए जाते हैं। इसके अलावा पूरे पंजाब में 10 मोस्ट सीनियर तरीन प्रोफेसर में आपका शुमार होता है। आपने बड़ी ही अदबी, बड़ी ही कीमियाई और इंटेलेक्चुअल बातें की हैं तालीमी एजुकेशन के हवाले से। अपने मेज़बान ज़ैन बिन मुनव्वर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।